Morning children, welcome to all once again. I am Mrs. Rani Sheikh from NCMS Chabua. Today we are going to discuss our fourth chapter from second semester. The name of your chapter, The Happy Prince. The theme of this chapter, courage in compassion. So the word courage means the ability to control fear in a situation that may be dangerous or unpleasant. So children, in this chapter we will read the story of a prince and swallow. So first of all we will do warm up exercise. Some people devote their entire life for the welfare of others. Match the names of some such courageous and kind people with their description. So children, do you know some name of courageous people who devoted their entire life for welfare of others? For example, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, many are there. But here some courageous name are given here with its description. So let's see who is this. So some name are given here and with their description. So what is the name? Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. What is its description? So children, a Nobel Peace Prize winner and South Africa's first known white president, he fought for equal rights for the black community in his country. He was imprisoned for almost 3 decades for his reason. So children, who is this? Yes, Nelson Mandela. So write here number 3. Second, a social activist and a leader of the Indian independence movement. He preached non-violence, peaceful disobedience and equality among people of all castes and religions. So children, who is this? Yes, Mahatma Gandhi. Who is this? Mahatma Gandhi, a leader of the Indian independence movement. Next, a leader of the civil rights movement in the United States of America. He fought for equality and justice for Americans of all races. So who is this? Yes, Martin Luther King Jr. So children, here warm up exercise done here. We have completed warm up section. So before start the story, I would like to introduce new words from the story. Gilded. What is the meaning of gilded? It means covered with a thin layer of gold or gold paint. Sapphires. It means clear, bright blue, precious stones. Ruby, a dark red precious stone. Hilt, the handle of sword. What is the meaning of sword? Sword means talwar. Reed, a plant that grows in shallow water. Twitter, it means talked, making short high sound. Pyramids, large building with a square or triangular base and sloping side that meet in a point at the top. Alighted means landed after landed after flying. Curious, it means strange and unusual. Courtiers, it means persons who are part of the court of a king or queen. Lead, it means a heavy, soft grey metal. Poor house. The poor house means in former times an institution in which poor people could live. It was paid for by the public. Seamstress, it means a woman who sews and makes clothes. Square, it means an open area in a town, usually with 4 sides surrounding by buildings. Swooped, it means flew downwards quickly and suddenly. Making merry, it means enjoying oneself. Starving, suffering or dying because of a lack of food to eat. Leaf, here a very thin sheet of metal. Snapped, it means broke suddenly with a sharp noise. Mayor, the head of the government of a town or city elected by the public. Shabby, it means looking old and in a bad condition. Dust heap, it means a pile of waste or discard material. Precious,
rare and worth a lot of money. Paradise, a perfect place where people are said to go when they die. So let's start the story, children. So a statue of a happy prince observed that some people of his country are suffering. Is he able to help them? Read this adaptation of a story by Oscar Wilde to find out. So children, this is a statue of a happy prince. He observed his country are suffering. Is able to help them? Let's see. Read this adaptation of a story by Oscar Wilde to find out. High on a column stood the statue of the happy prince, gilded. Gilded means a thin layer of gold, paint or covered with gold. Two bright sapphires. Sapphires means precious stone which is a blue color. 4 eyes and a large red ruby on his sword. Sword means talwar. Hilt. Hilt means the handle of the sword. You can see the handle of the sword. So this is the statue. This is the statue of a happy prince which is covered with a thin layer of gold paint. It had 2 precious stones for eyes and a large red ruby on his sword. Sword on hilt. So children, what is this? ये क्या है? What is this? This is the statue of happy prince. ये एक स्टेच्यू है हैप्पी प्रिंस का जिसको पूरा कवर्ड किया हुआ है सोने की लेयर से, गोल्ड लेयर से, थिन गोल्ड लेयर कवर्ड बाय happy prince. It had 2 bright sapphire 4 eyes. इनकी आंखों में 2 precious stone लगे हैं which is a blue color and a large red ruby on his sword. और you can see in this sword large red ruby on his sword of hilt. उनकी जो तलवार है उसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक बड़ा सा रूबी लगा हुआ है. He was much admired. Why can't you be like the happy prince? Asked a mother of her little boy who was crying. So children, a mother of her little boy asked who was crying, जो रो रहा था. Why can't you be like the happy prince? तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं हो? He looks like an angel, said the charity children. वो कैसा दिख रहा था? He looks like an angel. एंजल की तरह दिख रहा था. Who said that? The charity children said that he looks like an angel. One night, a little swallow flew over the city. His friends had gone away to Egypt for winter, but he had stayed behind, for he was in love with the reed. What is reed? The reed means a plant that grows in a shallow water. It is ridiculous. Tweeter means talked the other swallows and flew away. So children, one day what happened? A little swallow flew over the city. When his friends had gone away to Egypt for winter. जब उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो कहाँ चले गए थे? विंटर के लिए इजिप्ट चले गए. But he had stayed behind. और वो वहीं रुक गया था. For he was in love with the reed. वो क्यों रुका था? क्योंकि उसे एक रीड प्लांट था जो उसको बहुत ही पसंद था. But he had stayed behind. और वो उसके पीछे रुक गया था. It is ridiculous, tweeted the other swallows and flew away. Talked the other swallows and flew away. It is ridiculous. After they had gone, he felt lonely. और जब सारे उसके फ्रेंड्स, swallow के सारे फ्रेंड्स चले गए तो he felt lonely. वो अकेला महसूस करने लगा. Will you come away with me? He said to the reed, but the reed refused. I am off to the pyramid. The swallow cried. जब सारे फ्रेंड्स उसके चले गए तो swallow ने रीड से पूछा, विल यू कम अवे विथ मी? क्या तुम मेरे साथ आओगे? बट द रीड रिफ्यूज्ड. रीड ने क्या किया? इनकार कर दिया. आई एम ऑफ टू द पिरामिड्स. द swallow cried. द swallow ने कहा आई एम टू द पिरामिड्स. मैं पिरामिड्स छोड़ के जा रहा हूँ. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड देन ही अराइव्ड इन द सिटी. वेयर शैल आई पुट अप? और पूरे दिन फ्लाई करने के बाद वह सिटी में पहुंचा. वेयर शैल आई पुट अप? देन ही सॉ द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. और पूरे दिन फ्लाई करने के बाद वह इस सिटी में पहुंचा और उसने देखा स्टेचू ऑफ द प्रिंस. द स्टेचू ऑफ द प्रिंस. आई विल पुट अप देयर ही क्राइड. और जोर से चिल्लाया कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए. आई विल पुट अप देयर.
He alighted means landed. He alighted between the feet of the happy prince and found a golden bedroom. Just as he was going to sleep, a drop of water fell on him. How curious! Curious means strange. He cried, "There is not a single cloud in the sky, yet it is raining." So children, he alighted between the feet of the happy prince and found a golden bedroom. और जो he landed between the feet of the happy prince, और वो कहाँ रुक गया? हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में, और उसने पाया एक गोल्डन बेडरूम. जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप, और जैसे ही वो सोने जा रहा था, अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक ड्रॉप थी वाटर की जो उसके ऊपर आकर गिरी. हाउ क्यूरियस, हाउ स्ट्रेंज, ही क्राइड, वो जोर से चिल्लाया, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. यहाँ तो एक भी सिंगल क्लाउड नहीं है. क्या यह रेन है? ये इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है. Another drop fell. He looked up. The happy prince was crying. उसने देखा एक और बूंद उसकी पानी की एक और बूंद उसके ऊपर गिरी. He looked up. The happy prince was crying. और happy prince क्या था? रो रहा था. He was crying. Who are you? The swallow said. The swallow asked the happy prince, "Who are you?" I am the happy prince. Happy prince said that I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. Swallow ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? Why are you weeping then? तुम क्यों रो रहे हो? When I was alive, answered the statue. Who is the statue of the happy prince? Happy prince ने आंसर दिया, When I was alive, जब मैं जीवित था, I did not cry. My courtiers called me the happy prince. जब मैं जीवित था मैं कभी नहीं रोता था, और मेरे जो कर्टियर्स हैं, कर्टियर्स मीन्स पर्सन हु आर पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ अ किंग और क्वीन, जो मेरे पर्सन हु आर पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ अ किंग और क्वीन, कर्टियर्स के जो लोग थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं डाइड हुआ. नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप वेयर आई कैन सी ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी. Though my heart is made of lead, yet I weep. So children, वो क्या कहता है? जब मैं जिंदा था, मतलब जीवित था, लाइव था, when I was alive, जब मैं जीवित था, I don't cry. He did not cry. और जो उसके कोर्ट के जो लोग थे वो उसको किस नाम से पुकारते थे? द हैप्पी प्रिंस के नाम से, और वो ऐसे ही जिया और ऐसे ही डाइड हुआ. नाउ दैट आई एम डेड, जैसे अब मैं जब डेड हो गया हूँ, they have set me up where I can see all the misery of my city. misery means unhappy. और मैं देख सकता हूँ, इन्होंने मुझे ऊपर की इधर स्टेचू के रूप में खड़ा कर दिया, और मैं देख सकता हूँ कि मेरे सिटी के लोग कितने अनहैप्पी हैं. दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, क्योंकि इन्होंने मेरा दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, इन्होंने जो मेरा हार्ट है वो किस चीज़ का बना हुआ है? लेड का बना हुआ. दैट्स वाई आई एम वीपिंग. फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू, और जो स्टेचू था हैप्पी प्रिंस वो बोल ही रहा था. फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू, देर इज़ अ पुअर हाउस, आई कैन सी मिस्ट्रेस. सी मिस्ट्रेस मीन्स अ वुमेन whom sews and makes clothes. Her face is in thin and worn. She is making a gown for the queen's maids of honor. Her boy has fever and wants oranges. She has only water. Swallow, will you take her my ruby? वो स्टेचू बोलता है, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि दूर से देखो एक पुअर हाउस है. आई कैन सी अ सीमस्टर, मैं एक लेडी को देख सकता हूँ जो कपड़े सिलती है. हु स्वीज एंड मेक्स क्लोथ्स. हर फेसेस, उसका फेस पतला पड़ चुका है, वॉर्न हो चुका है. शी इज़ मेकिंग अ गाउन फॉर द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, और वो किसके कपड़े सिलती है? क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर के कपड़े सिलती है. हर बॉय हैज़ फीवर, उसके बेटे को फीवर हुआ है. एंड वॉन्ट्स ऑरेंज, शी हैज़ ओनली वाटर, और वो उसके जो उसका बेटा है, हर बॉय हैज़ फीवर, उसके बेटे को फीवर है और वो चाहता है ऑरेंज खाना, बट उसके पास कुछ नहीं है. शी हैज़ ओनली वाटर. स्वेलो, विल यू टेक हर माई रूबी, क्या तुम मेरा ये रूबी ले जाके उसको दोगे? आई रेदर नॉट, आंसर द स्वेलो. सो चिल्ड्रन, स्वेलो ने क्या कहा? स्वेलो ने इनकार कर दिया. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द स्वेलो एग्रीड.
जब हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी हो गया तो स्वेलो एग्री हो गया. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड बट आई विल स्टे फॉर वन नाइट. स्वेलो सेड दैट इट इज़ वेरी कोल्ड हियर. इट मीन्स यहाँ बहुत ठंड है, बट आई विल स्टे ओनली वन नाइट. द स्वेलो प्लग द रूबी एंड फ्लू अवे विथ इट. और स्वेलो ने क्या कहा, उसकी जो सॉर्ड से रूबी को निकाला और उड़ गया. एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस. द बॉय वॉज टॉसिंग ऑन हिज बेड एंड द मदर वॉज asleep. He laid the great ruby on the table and flew back. So children, जैसे ही स्वेलो ने उसको रूबी को निकाला और एंड फ्लू अवे विथ इट, और उसके साथ उड़ गया. एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस. और वो कहाँ पहुँच गया, उस लेडी के घर. द बॉय वॉज टॉसिंग ऑन हिज बेड एंड द मदर वॉज asleep. जहाँ पर उसका बेड पर लेटा हुआ था और बेड पे पड़ा था और मदर उसकी बेड साइड में सोई थी. ही लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल एंड फ्लू बैक. और उसने उस रूबी को पास में पड़ी हुई टेबल पे रखा और फ्लू बैक हो गया. इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. सो चिल्ड्रन, ठंड होने के बाद भी ही फील स्वेलो फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू हैव डन अ गुड डीड सेड द प्रिंस. और जब स्वेलो बोलता है कि इतनी ठंड है फिर भी मुझे थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा है, तो प्रिंस बोलता है दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन गुड डीड. तुमने एक अच्छा काम किया है, दैट्स वाई तुम फील कर रहे हो गर्मी को. जब हम कुछ अच्छा काम करते तो हमको अच्छा लगता है ना. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड सेड द प्रिंस. When day broke, he flew to the river and had a bath. और जब दिन हुआ, swallow flew to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. The swallow said that tonight I go to Egypt. उसने कहा कि आज रात में इजिप्ट चला जाऊंगा. Swallow said the prince, will you stay one night longer? So children, the prince said that swallow, will you stay one night longer? क्या तुम एक रात और ज़्यादा रहोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो. तो स्वेलो ने क्या कहा, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाने के लिए वेट कर रहा हूँ. आई कैन सी अ यंग मैन सेड द प्रिंस, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड एंड हंग्री टू राइट. माई आईज आर मेड ऑफ सफायर्स. प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम. सो चिल्ड्रन, The happy prince told to swallow, I can see a young man, said the prince. प्रिंस ने क्या कहा, मैं देख सकता हूँ एक यंग मैन को. He is trying to finish a play for the director of theatre. जो एक प्ले कंप्लीट करना चाह रहा है, but he is too cold and hungry. वो बहुत भूखा है. My eyes are made of sapphire. Sapphire means blue precious stone. So जो प्रिंस बोलता है कि मेरी आँखों से एक सफ़ायर को निकालो, प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम. और उस सफ़ायर को ले जाके उस यंग मैन को दे दो. डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड बिगेन टू वीप. जब स्वेलो ने प्रिंस को मना किया, आई कैन नॉट डू दैट एंड बिगेन टू वीप, अगेन स्टार्टेड क्राइंग. द हैप्पी प्रिंस अगेन स्टार्टेड क्राइंग. लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई से. जैसे ही वो रोने लगा, स्वेलो ने कहा जैसा तुम कहते हो वैसा मैं करता हूँ. द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई. ही वेंट एंड पुट द सफायर ऑन द टेबल विदाउट द स्टूडेंट सीइंग हिम. व्हेन द स्टूडेंट लुक्ड अप, ही फाउंड द सफायर. दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर. ही क्राइड, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. सो चिल्ड्रन, द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस. जब स्वेलो ने प्रिंसेस की एक आई को निकाला, ही वेंट एंड पुट द सफायर ऑन द टेबल विदाउट द स्टूडेंट सीइंग हिम. और जब उसने उसकी एक आँख को निकाला और उसको लेके उड़ा, उस सफायर को लेके, और उसने टेबल पे रखा विदाउट द स्टूडेंट सीइंग हिम, बिना देखे. व्हेन द स्टूडेंट लुक्ड अप, जैसे ही उन स्टूडेंट ने ऊपर देखा, ही फाउंड द सफायर. उन्हें क्या पाया, सफायर. दिस इज from some great admirer. He cried, now I can finish my play. He said that now I can finish my play. I come to say
goodbye, said the swallow the next day. So children, the next day the swallow said to happy prince, I come to say goodbye. मैं तुम्हारे को goodbye कहने आया हूँ. Swallow said the prince, will you stay one night longer? Again happy prince बोलता है कि swallow क्या तुम एक रात और ज़्यादा रुकोगे? Will you stay one night longer? It is winter, answered the swallow. Swallow ने कहा it is winter. In the square below sat the happy prince. There stand a little mage girl. Her matches have got spoiled. Her father will beat her if she does not bring some money. Give her my other eye. So children, again happy prince swallow को बोलता है कि in the square below, square means चौराहा, एक चौराहे के नीचे एक लड़की खड़ी है. देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल. हर मैचेस हैव गोट, उसकी जो सारी उसके हाथ में जो मैचेस थी वो सब स्पॉइल्ड हो गई है. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग सम मनी. उसके फादर उसे मारेंगे अगर वो कुछ मनी लेकर घर नहीं पहुंची. गिव हर माई अदर आई. तो क्या कहता है कि मेरी जो दूसरी आई है वो उसको ले जाके दे दो. आई विल स्टे विथ यू said the swallow, but I cannot pluck out your eye. वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा बट मैं तुम्हारी आँख को नहीं निकाल सकता. I cannot pluck out your eyes. Do as I say, said the prince. जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. The swallow plucked out the prince's other eye. He swooped past the mage girl and slipped the jewel into her hand. What a lovely bit of glass, cried the girl. She ran home laughing. So children, उसने swallow ने क्या किया, प्रिंस की एक और आई को बाहर निकाला. He means flew downwards, और उसको लेके वो उस लड़की के पास गया और उसके हाथ में उस जो वो थी उसकी आई, उसको किसके हाथ पे रखा, उस लड़की के हाथ पे रखा. into her hand. What a lovely bit of glass. She said that what a lovely bit of glass, cried the girl. She ran home laughing. और हंसते हुए वह अपने घर की ओर चली गई. You are blind now, the swallow said. I will stay with you always. So who said that? The swallow said कि you are blind now, अब तुम अंधे हो चुके हो. You are blind. I will stay with you always. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. No, little swallow, said the prince. Said the prince. You must go to Egypt. वो क्या कहता है? The prince said that no, little swallow, you must go to Egypt. अब वो कहता है कि तुम जाओ, इजिप्ट जाओ. I will stay with you, said the swallow. Swallow ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him story. और हर रोज़ वो हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पे बैठता और उसको अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाता था. Swallow, said the prince, you tell me wonderful story, but I want to know of the suffering of men. Fly over my city and tell me what you see. Swallow, said the prince. प्रिंस ने swallow से कहा, you tell me wonder, तुम हमेशा मुझे अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हो, but I want to know of the suffering of men. मैं ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जो अनहैप्पी हैं, सफरिंग हैं किसी न किसी चीज़ से लेके. फ्लाई ओवर माई सिटी एंड टेल मी वॉट यू सी. और फ्लाई करो और देखो जाके और उन लोगों के बारे में बताओ कि जो अनहैप्पी है, सफरिंग है. एंड टेल मी वॉट यू सी, और क्या बताओ मुझे कि तुमने क्या देखा. द swallow flew over the city and saw the rich making merry. Rich making merry means enjoy oneself, while the beggars were sitting in the cold. So उसने जब वो पूरी सिटी पे swallow फ्लाई करा तो उसने देखा कि एक साइड के लोग बहुत ही हैप्पी हैं, बट अदर साइड while the beggars were sitting in the cold. beggars means भिखारी, और जो beggars थे वो अदर साइड पे बैठे हैं, कोल्ड में, ठंड में बैठे हैं. He saw the white faces of starving. Starving means suffering or dying because of a lack of food or eat. तो उनने देखा कि कुछ भिखारी सफरिंग फ्रॉम वर सिटिंग इन द कोल्ड, कुछ भिखारी रोड के साइड पे बैठे हैं. ही सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और उन्होंने ऐसे बच्चों को भी देखा जो भूख और प्यास से उनका फेस सफ़ेद पड़ चुका है. अंडर अ ब्रिज 2 little boys वर लाइंग इन वन अनदर्स
आर्म टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो उसने देखा ब्रिज के अंदर 2 लिटिल बॉयज़ लेटे हुए हैं एक दूसरे की आर्म्स पे। क्यों लेटे हैं वो? क्योंकि एक दूसरे को वार्म करने के लिए, गर्मी देने के लिए, ताकि उनको ठंड ना लगे। ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन। और स्वेलो फ्लू हुआ और उसने जाके वो जो कुछ देखा उसने सब कुछ हैप्पी प्रिंस को बताया। आई एम कवर्ड विद गोल्ड, यू मस्ट टेक इट ऑफ एंड गिव इट टू माई पुअर। सो चिल्ड्रन, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मैं पूरा कवर्ड किससे हूँ? गोल्ड, थिन लेयर ऑफ गोल्ड से कवर्ड हूँ। तुम मेरी इसको निकाल लो और उस जाकर उन पुअर को दे दो। द स्वेलो पिक्ड ऑफ द गोल्ड लीफ बाय लीफ till the happy prince looked dull and grey. So you can see children, the happy prince looked dull and grey. आइज़ निकाल ली, रूबी निकाल लिया, अब उसका जो कवर था थिन लेयर ऑफ गोल्ड का वो भी निकाल लिया, जिसकी वजह से वो डल एंड अगली दिखने लगा। Then the snow came, the poor swallow grew colder, but he would not go. He tried to keep himself warm by flapping his wings. So children, जब स्नो आई तो पुअर सोलो को और ज़्यादा ठंड बढ़ गई, बट ही वुड नॉट गो, और वो नहीं गया। ही ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। फ्लैपिंग मीन्स अपने पंखों को उड़ाकर वो अपने आप को गर्मी देता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। जब उसे लगा कि दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है, ही फ्लू टू द प्रिंसेस शोल्डर। वो उड़ के कहाँ गया? प्रिंस के शोल्डर पर गया। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्म, उसने धीरे से कहा गुड बाय प्रिंस। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, सेड द प्रिंस। प्रिंस को लगा कि वो कहाँ जा रहा है? इजिप्ट जा रहा है। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। वो कहता है मुझे बड़ी खुशी है कि तुम वापस इजिप्ट जा रहे हो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। स्वेलो बोलता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ, मैं मरने जा रहा हूँ, मतलब ऐसे घर जा रहा हूँ जहाँ पर से कभी ना आ सकूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डेड। और उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया और गिर गया, और गिरकर मर गया। अ लाउड क्रेक sounded inside the statue, as if something had broken. The leaden heart had snapped into two. So children, जैसे ही वो प्रिंस की डेथ हुई, a loud crack sound, जो स्टेचू की हार्ट में से एक बहुत ही क्रेक साउंड आवाज़ आई। The leaden heart had snapped into two, और जो उसका जो हार्ट था वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। The next morning, the mayor was walking by. Who is the mayor? The head of the government. What is the mayor? The head of the government. The next morning, the mayor was walking by. जब वहाँ से you can see the mayor was walking by. जब next day जब mayor वहाँ से गुजर रहे थे, as he passed, he looked up. How shabby. Shabby means old and bad condition. The happy prince looks, he said, and there is a dead bird at his feet. और उन्होंने जब नेक्स्ट डे हैप्पी प्रिंस के साइड से जो मेयर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बहुत ही स्टेचू जो था वो बहुत ही अगली सा दिखने लगा था। यू कैन सी दिस हाउ अगली एज इफ द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, एंड देर इज़ अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और जो स्वेलो था, जो डेड स्वेलो था, वो भी उसके फीट पे पड़ा हुआ था। ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल और यूजफुल। उस मेयर ने कहा कि अब ये ज़्यादा अच्छा, ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल और यूजफुल, ये अब ना ये अच्छा है दिख रहा है ना यूजफुल है। सेड द आर्ट प्रोफेसर, हु सेड दैट? आर्ट प्रोफेसर सेड दैट ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल और यूजफुल। दे पुल डाउन द स्टेचू एंड मेल्टेड। उन्होंने इस स्टेचू को नीचे उतारा और उसको मेल्ट किया। बट हाउ स्ट्रेंज, सेड द ओवरसियर, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट। जो स्टेचू का जो हार्ट था लेड का बना, वो मेल्ट नहीं हुआ। वी मस्ट थ्रो इट अवे। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप। और उसने वो उस हार्ट को क्या किया? फेंक दिया, थ्रो कर दिया। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप। डस्ट हीप है ना, ऐसी चीज़ जहाँ पर
वेस्ट मटेरियल रखा जाता है. वेयर द डेड swallow was laying in the city said God to his angel. So children, अब गॉड ने अपने एंजल को ऑर्डर दिया कि जाओ और मेरे लिए टू प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, जो आपकी सिटी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लेकर आओ. द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. और उस एंजल ने क्या ला के दिया गॉड को? हैप्पी प्रिंस, और हैप्पी प्रिंस का हार्ट और डेड बर्ड विच इज swallow's बॉडी. यू हैव राइट चूजन सेड गॉड. गॉड ने कहा तुमने बिल्कुल राइट चूज करके लाए हो. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शॉल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शाल प्रेज मी. और वो गॉड बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल राइट चूज़ किया है, हैप्पी प्रिंस का हार्ट और swallow की बॉडी. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शॉल सिंग फॉर एवर वन. और ये मेरे जो हमेशा जाना चाहते हैं स्वर्ग में, और ये बर्ड और ये हमेशा सिंग करता रहेगा एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शाल प्रेज मी. सो चिल्ड्रन, आपने देखा कि कैसे हैप्पी प्रिंस और swallow अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए. तो हमेशा हमें नेवर बी हमें करेजियस पर्सन बनना है. डोंट बी सेल्फिश, ऑलवेज हेल्प अदर्स. थैंक यू.